الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، شورائے اسلام، شہزادگان و نبیرگان، حضور صدر الشریعہ، بالخصوص استاذ العلماء، یادگار اسلاف، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی بہاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، استاذ العلماء والادباء، گرامی مرتبت عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی بہاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، دامت برکاتہم العالیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رفیقان محترم، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور روح پرور بزم، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بینر تلے نبیر صدر الشریعہ، فاضل علوم مشرقیہ و مغربیہ، نور نظر خانواد علمیہ، حضرت علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ نے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے، رب قدیر ان کی جد و جہد کو شرف قبول عطا فرمائے، ان کے بازوؤں میں مزید قوت بخشے۔ اب یہ وقت کسی خطاب طویل کا متحمل نہیں ہے، اور نہ ہی اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کے پاس اب مزید تفصیل کے لیے وقت رہ گیا ہے۔ خود اس فقیر کو ابھی 4 گھنٹے کا سفر کر کے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی پہنچنا ہے، اور درسگاہ کی حاضری ضروری ہے۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں حضرت مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب کے ارباب حل و عقد کو، ان کے رفقائے کار کو، خانواد امجدیہ کو، کہ رب قدیر نے انہیں یہ عزم و حوصلہ بخشا کہ ایک وادی غیر ذی زرع میں اور لق و دق
مسلک و مشرب کے اعتبار سے جنگل اور صحرا میں ایک گلزار سجایا، ایک گلستان لگایا اور ایک چمن کو سرسبز و شادابی بخشنے کے لیے اپنے نادواں کندھے پر بوجھ اٹھایا۔ چمن میں پھول کا کھلنا کوئی کمال نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا کوئی کمال نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ صحرائے نجد سے متاثر ہو کر ہندوستان کے جن شہروں کو نیم نجد کا نام ارباب علم و دانش نے دیا، ان میں سے ایک وہ شہر بھی ہے جہاں آپ اس وقت موجود ہیں۔ میں اس حوالے سے زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، مجھ سے پیشتر جماعت اہل سنت کی قداور شخصیتوں کا خطاب آپ نے سماعت کیا، اور ابھی میرے بعد عالم اسلام کی اس عبقری شخصیت کے کلمات خیر سے آپ اپنے آپ کو محظوظ فرمائیں گے، جو اس وقت پوری دنیا کے لیے بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے۔ میری دانشت کے مطابق ہندوستان بھر میں اس وقت صرف یہی ایک ایسی ذات ہے جو بے شمار اکابر کی امانتوں کی تنہا امین ہے۔ حضور صدر الافاضل، حضور حجت الاسلام، حضور مبلغ اسلام، حضور صدر الشریعہ، سرکار مفتی اعظم اسلام جیسی بے شمار اکابر شخصیتوں کے نور علی نور چہرے کی جس ذات نے زیارت کی ہے اور اپنی آنکھوں میں ان شخصیات کا جلوہ جس نے سمو رکھا ہے، وہ تنہا ایک ذات ہے جو بھی تھوڑی دیر کے بعد جلوہ گر ہونے والی ہے، جسے ہم سلطان المناظرین کہتے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، شہزادہ صدر الشریعہ کہتے ہیں، اعتماد تاج الشریعہ کہتے ہیں، ترجمان امام احمد رضا کہتے ہیں، نقیب مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، پاسبان مذہب اہل سنت کہتے ہیں، جسے ہم وقار ہندوستان کہتے ہیں، اور علم کی زبان میں جسے محدث کبیر کہتے ہیں۔ وہ شخصیت ابھی تھوڑی دیر کے بعد جلوہ گر ہونے والی ہے، ان کے کلمات نصیحت سے ہم اور آپ محظوظ ہوں گے۔ بمبئی کی سرزمین سے چل کر جلوہ فرما ہونے والی عظیم شخصیت قاضی مہاراشٹرا حضرت علامہ مفتی محمود اختر قادری دامت ظل العالی کا بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ بس 2 چند منٹ آپ مجھے برداشت کریں، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، علی تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم و آل الکرام اجمعین۔ رب قدیر نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، اور ہر مخلوق کو کچھ ایسی صفتیں اور خصوصیتیں بخشی
जिससे दूसरी मखलूकात को उसने महरूम रखा। अगर एक मखलूक में कोई सिफत और खुसूसियत तो दूसरे में उसने वो नहीं रखी। उसका निजाम है, उसका सिस्टम है। अल्लाह की मखलूकात में एक मखलूक मलाइका हैं, फरिश्ते हैं। रब कदीर ने उन्हें अक्ल बख्शी, लेकिन उन्हें नफ्स नहीं दिया। वो नफ्स से पाक हैं। जानवरों को अल्लाह तबारका व तआला ने नफ्स दिया, उन्हें अक्ल नहीं दी। मगर इंसान दोनों सिफतों का मजमुआ है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी और इसे नफ्स भी दिया। जिसे सिर्फ अक्ल दी उसका दर्जा कुछ और है। जिसे सिर्फ नफ्स बख्शा उसके अहकाम कुछ और हैं, और जिसे दोनों का मजमुआ बनाया उसके अहकाम कुछ और हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल बख्शी, उन्हें नफ्स नहीं दिया। वो खता से पाक हैं, उनसे कोई खता नहीं हो सकती। यफ़अलून मा युअमरून, कुरान करीम फरमाता है उन्हें जो भी हुक्म दिया जाता है वो अमल करते हैं। उन्हें जो भी हुक्म अल्लाह की तरफ से मिलता है उसे वो अंजाम देते हैं। उनसे खता मुहाल है, उनसे खता हो ही नहीं सकती। उन्हें नफ्स से पाक रखा तो उन्हें यह मकाम बख्शा। अल्लाह ने जानवरों को नफ्स बख्शा और इन्हें अक्ल नहीं दी तो इनके अहकाम भी अलग कर दिए। इनको किसी चीज का पाबंद नहीं रखा। हरी घास लगी हुई है, इसका मालिक कौन है, किसने ये घास लगाई है, कोई जानवर सोच समझ करके उसे नहीं खाता है। हरी घास देखा, बैल ने मुंह मार दिया, गाय ने खा लिया, भैंस ने चर लिया। खाना रखा हुआ था, रोटी रखी हुई थी, जानवर ने मुंह मार दिया, खा लिया। कोई मुफ्ती साहब ये नहीं कहेंगे कि ये नाजायज काम कर रहा है। कोई फकीह नहीं कहेगा कि ये हराम काम कर रहा है। कोई आलिम ये नहीं कहेगा कि ये बैल और ये गाय, ये गधा हराम खा रहा है। उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगाया जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसे अगर अक्ल नहीं दी तो अहकाम का उसे पाबंद नहीं किया। अब मेरी बात थोड़ी देर के लिए गौर से समाअत करेंगे, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये तो कहा जाता है फला टॉपिक पर तकरीर कीजिए, बच्चियों के साथ ये सलूक कर रहा है, इस पर तकरीर कीजिए। वो कौन सा मौजू है जिस पर हमारे उलमा ने अब तक खिताब नहीं किया है? वो कौन सा उन्वान है जिस पर इन हजरात की अब तक गुफ्तगू नहीं हुई है? मजबूर होकर के ही किसी शायर ने कहा था, जगा जगा के तुझे थक चुके हैं हंगामे, जगा जगा के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। शायर ने ऐसे ही नहीं कहा था, कौम के हालात को उसने देखा, पढ़ा, इन्हें समझाया, इन्हें बताया, उलमा की गुफ्तगू इन तक पहुंची। उसके बावजूद इनके कान पर जू नहीं रेगी। ये परेशान हुए तो कहा दुआ कीजिए। तो शायर ने कहा, अर्ज करता हूं खुदा से या अल्लाह तू हाल देख, अर्ज करता हूं खुदा से या अल्लाह तू हाल देख। हुक्म होता है कि अपना नामे आमाल देख।
हुक्म होता है कि अपना नाम ए आमाल देख। अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल बख्शी, जानवरों को नफ्स दिया। फरिश्तों से कोई खता नहीं और जानवरों की किसी बात पर कोई मुआखजा नहीं। उसके मालिक से तो मुआखजा हो सकता है मगर खुद जानवर से मुआखजा नहीं। कानून जानवर के लिए नहीं बनते, कानून अक्ल वालों के लिए बनते हैं। ये शानदार लान मैरिज हाल, दीवार पर अगर लिखा हुआ हो यहां पेशाब करना मना है, अगर इसकी निगरानी करने वाला, इस हाल की देखभाल करने वाला कमरे से निकल करके बाहर गया और देखा एक आदमी वहीं पर पेशाब कर रहा है जहां ऊपर लिखा हुआ है कि यहां पेशाब करना मना है, हाल का रखवाला इंतजार करेगा और जब वो फारिग होगा तो उसका हाथ पकड़ेगा और उसे मालिक के पास ले जाएगा कि वहां लिखा हुआ है पेशाब करना मना है मगर फिर भी पेशाब कर रहा है, इसको सजा दीजिए। मालिक के पास उसे करके आया और देखा कि एक गधा भी वहीं पेशाब कर रहा है। अब बताइए उस गधे को किसके पास पकड़ करके लेके जाएगा? उसे सजा कहां दिलवाएगा? अगर वो गधे का कान पकड़े तो खुद ही गधों में शुमार हो जाएगा। पता क्या चला? वो कानून जानवरों के लिए नहीं बना था, कानून इंसानों के लिए बना था। जानवरों के लिए कानून नहीं बनता, कानून इंसानों के लिए बनता है। जानवर कानून से बालातर हुआ करता है इसलिए कि उसके पास अक्ल शूर नहीं है, तो अल्लाह ने उसे अहकाम का मुकल्लफ नहीं बनाया। इंसान के अंदर दोनों खूबियां, दोनों सिफतें हैं। इसके अंदर अक्ल भी है, इसके अंदर नफ्स भी है। दोनों में टकराव होता है। अक्ल कुछ और कहती है, नफ्स कुछ और कहता है। अक्ल कहती है ऐसा होना चाहिए मगर नफ्स कहता है ऐसा होना चाहिए। दोनों में टकराव होता है और जब कहीं भी दो चीजों में टकराव होता है, दो शख्सों में अगर टकराव होता है तो आपने ये भी देखा होगा कि दोनों के कुछ न कुछ हिमायती जरूर होते हैं। चाहे जिस तरह का टकराव हो, कुछ इधर होंगे कुछ उधर होंगे, यह भी निजाम कुदरत है। नफ्स का अक्ल से टकराव होता है तो नफ्स की हिमायत में भी कोई शय होती है और अक्ल की हिमायत में भी कोई शय होती है। अगर नफ्स और अक्ल का टकराव हो जाए, अक्ल जीत जाए तो यह इंसान काबिले सदरश के मलाइका हो जाए, इस पर फरिश्ते रश करें। और अगर नफ्स इसका गालिब आ जाए, अक्ल इसकी हार जाए, नफ्स इस पर गालिब आ जाए तो जानवर भी शर्मिंदा हो जाए इसकी हरकत से। अगर नफ्स इसका गालिब आ जाए इस पर तो यह जानवर से भी बदतर हो जाए। कुरान करीम फरमाता है इन हम कल अनआम बल हम अवल्लो सबीला, ये लोग ये जानवर से भी गए गुजरे हैं, इसलिए कि जानवर तो अपने खालिक और मालिक को पहचानता है, वो अपने मालिक की वफादारी में रहता है। एक कुत्ते को अगर 4 रोज लुकमा दे दीजिए, 5वें रोज अगर उसका बेटा कुत्ते को मारे, कुत्ता उसे भी नहीं काटेगा, चीख करके रह जाएगा, दुम हिला करके बैठ जाएगा। 4 रोज में वो समझ लेता है कि ये मेरे मालिक का बेटा है, मुझे इसके साथ भी वफादारी करनी चाहिए। और ये इंसान पूरी जिंदगी अपने मालिक के महबूब को नहीं पहचान पाता है, अपने खालिक के महबूब को ये नहीं पहचान पाता है, तो इसका दर्जा जानवर से भी नीचे हो जाता है। और इस वक्त इंसान इसी दर्जे में है। मुझे कहने दिया जाए, क्या आपने किसी गाय को गाय के साथ जुफ्ती करते हुए देखा? क्या किसी बैल को बैल के साथ आपने जुफ्ती और जोड़ खाते हुए देखा? ये मेरे अकाबिर उलमा बैठे हैं,
शहजादे फकीह मिल्लत हैं, शहजादे सदर शरिया हैं, नबीरे सदर शरिया हैं। उलमा का स्टेज है, हिंदुस्तान के जिम्मेदारों की स्टेज जिस तरह से लगते हैं वही स्टेज सजा हुआ है। मैं ज्यादा खोल करके गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे बताइए, क्या कभी आपने बैल को बैल के साथ जुफ्ती करते हुए देखा? क्या आपने गाय को गाय के साथ जुफ्ती करते हुए देखा? गोया जानवर भी ये समझता है कि जुफ्ती के लिए जिन्स का फर्क होना चाहिए, लेकिन जब ये इंसान जानवर से नीचे होता है, इस पर इसका नफ्स गालिब आता है, तो ये लड़के से लड़के के साथ शादी कराता है, ये लड़की की लड़की के साथ शादी कराता है और कहता है कि ये तरक्की याफ्ता दौर है। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे। जिंदगी रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। इंसान पर जब नफ्स गालिब आ जाए तो ये जानवर से भी बदतर हो जाता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि गाय गाय के साथ जोड़ खाती हो, बैल बैल के साथ जोड़ खाता हो, सांड सांड के साथ जोड़ खाता हो। सांड और गाय में जुफ्ती तो होती है, लेकिन सांड और सांड में नहीं होता। और यहां अक्ल इंसानी इस कदर मायूफ हुई और नफ्स का ऐसा गलबा हुआ कि लड़के ने लड़के से शादी की और कहा तरक्की है, लड़की ने लड़की से शादी रचाई, कहा तरक्की है। मेरे भाइयों, तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। तरक्की के नाम पर इंसान जानवर से भी बदतर होता चला जा रहा है और आप कहते हैं कि तरक्की की जा रही है। मुझे इस वक्त खलीफे आला हजरत मुबल्लिगे इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी नव्वरल्लाहु मरकदहू की बात याद आती है। आप अपने एक खिताब में फरमाते हैं, लोग कहते हैं आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे, आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे, आगे चलो तो तरक्की करोगे। अल्लामा मेरठी फरमाते पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो और पीछे चलो। 1400 साल पीछे चले जाओ तब तुम तरक्की करोगे। 1400 साल पीछे चले जाओ तब तुम भी कहोगे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम पीछे चलो, 1400 साल पीछे चलो। क्या तुमने ये नहीं सुना है? आवाज देने वाले ने तुम्हें आवाज दे करके सुनाया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि लौह कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला। इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सदरे शरीयत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, मुमताजुल फुक़हा, शहजादे सदरुल शरिया, शहजादे सदरुल शरिया, हुजूर मुहद्दिसे कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, शहजादे सदरुल शरिया। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कौन लड़के हैं, कहाँ के हैं? बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं आप।
بیٹھ جائیں آپ حضرات بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. نہیں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. حضرات، اب آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں. میں نے ابھی چند منٹ قبل جس شخصیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی اور جس ذات کی بارگاہ میں کلمات محبت میں نے پیش کیے تھے، وہ ذات آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے. مجھے یاد آتا ہے نبیر استاذ زمن صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان صاحب علیہ رحمہ کے وصال کے موقع پر میرے مرشد گرامی آقائے نعمت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ایک منقبت لکھی اور اخیر میں ایک شعر لکھا: دیکھنے والوں جی بھر کے دیکھو مجھے، پھر نہ کہنا کہ اختر میاں چل دیے. رب قدیر حضرت کی تربت پر رحمت و نور کی بارش فرمائے. وہ ہم غرباء اہل سنت کے لیے ابر بہار تھے، ساون بھادو کی طرح وہ برستے تھے اہل سنت و جماعت کے علماء پر اور عوام پر. لوگوں نے ان سے عرض کی حضور یہ شعر بدل دیجئے، مگر پھر بھی لوگ یہ شعر پڑھتے تھے: جی بھر کے مجھ کو دیکھو، دیکھنے والوں جی بھر کے دیکھو مجھے، پھر نہ کہنا کہ اختر میاں چل دیے. آج بہت سارے لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ میں تاج الشریعہ کا مرید ہوں. ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو حضور تاج الشریعہ کے حوالے ہی سے آپ نے سنی قاضی مہاراشٹرا کی زبان کہ حضور تاج الشریعہ ہم پر اس طرح سے کرم فرماتے. ہمارے عوام کا عجب مزاج ہے، ان کی سوچ الگ ہو گئی ہے. میں کبھی کبھی یہ تقریر میں کہہ دیتا ہوں
کہ इन्हें अपने अकाबिर की अजमत का इल्म उनके इंतकाल के बाद होता है। ये फासिको फाजिर बदकिरदार लोगों को जिंदगी में आरिफ बिल्लाह और कुतुबे वक्त को मान लेते हैं, मगर उलमाए रब्बानीन की अजमतों का ये मजाक उड़ाते हैं। और जब यही उलमा दुनिया से चले जाते हैं तो फिर ये भी इन्हीं का खुतबा पढ़ते हैं। जब तक ये बाहयात रहते हैं तब तक हमारे कौम को इनकी अजमतों का एहसास नहीं होता। इमाम गजाली इमामुल अस्फिया हैं, इमामुल अत्किया हैं, इमामुल मुदब्बिरीन हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि जो सच्चे उलमा तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, उनके पास तुम्हारा जाना तुम्हारे लिए ज्यादा नफा बख्श है बनिस्बत उन उलमा के जो दुनिया से जा चुके हैं। इसलिए कि जो दुनिया से चले गए, अब आप में से कम लोग इस हैसियत के हैं कि उनके मजार पर जाकर फैज डायरेक्ट ले उनसे पढ़ें। कोई सवाल उनके जहन में आए तो मजार पे जाकर के कहें और वहां से जवाब मिल जाए। ऐसे लोग खाल खाल नजर आएंगे। इमाम गजाली फरमाते हैं जो उलमा बाहयात हैं उनकी खिदमत में पहुंचो, तुम्हारे सवाल का जवाब वहां से तुम्हें फौरन मिलेगा, तो उन्हें नफा इनसे, तुम्हें इनसे नफा ज्यादा मिलेगा। इसलिए इनकी बारगाहों में हाजिरी दे करके अपने मसाइल पेश किया करो। इमाम गजाली फरमाते हैं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मसलके आला हजरत के सबसे अजीम नकीब व तर्जमान का नाम मुहद्दिस कबीर है। उस्ताजुल उलमा ही नहीं, उस्ताजुल उलमा वल फुक़हा वल मुहद्दिसीन वल मुफ्तीन वल मुसन्निफीन वल मुहश्शिईन वल मुदब्बिरीन, जो कह लीजिए, सबके मर्जा का नाम मुहद्दिस कबीर है। मैं ये अर्ज कर रहा था, बस 2 चंद मिनट में और आपका लूंगा। बड़ी पाकीज़ा शख्सियतें तशरीफ फरमा है। मैं फिर मुबारकबादी देता हूं मुफ्ती फैजानुल मुस्तफा साहब कादरी अमजदी को कि उन्होंने जो एक अजीम किला तामीर किया है, जिस किले में आने के बाद आपके ईमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, आपके अकीदे की हिफाजत का सामान फराहम किया जाएगा। याद रखिए, हर मदरसा मुस्तफा के इल्म फैलाने वाला मदरसा नहीं होता है। हर आलिम रसूल पाक के सच्चे इल्म का नाशिर नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी अच्छाइयां हैं उन सब में सबसे ज्यादा अच्छाइयों की बातें अच्छे उलमा में होती हैं। दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं, दुनिया के अंदर जितनी अच्छी चीजें हैं उन सब में सबसे अच्छी चीज अच्छे उलमा हैं, और दुनिया में जितनी खराब चीजें हैं उनमें सबसे खराब चीज खराब उलमा हैं। इसलिए कि जब उलमा बिगड़ते हैं तो ये तन्हा नहीं बिगड़ते, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उलमा जब बिगड़ते हैं तो मुआशरा बिगड़ता है, उलमा जब बिगड़ते हैं तो समाज बिगड़ता है। किसी फिरके का बानी और फाउंडर कोई जाहिल नहीं मिलेगा। फिरके हशविया हो या फिरके जबरिया हो या फिरके कदरिया हो या फिरके मुतज़िला हो या फिरके मुजस्सिमा हो या फिरके मुशब्बिहा हो या फिरके रवाफिज हो या नवासिब हो, राफिजी हो, नासबी हो, तफसीली हो, खारजी हो, किसी फिरके का बानी और फाउंडर कोई जाहिल नहीं है। उनमें से जिसको आप देखेंगे इल्म का लिबादा ओढ़ा हुआ नजर आएगा। तभी कहने वाले ने कहा था, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर दरसगाह रसूल पाक के इल्म की दरसगाह नहीं होती है। हर आलिम रसूल पाक के सच्चे इल्म का नाशिर नहीं होता है। आप मुझे बताइए, एक आलिम अपनी किताब में लिखता है कि रसूल पाक के बाद भी दूसरा नबी आ सकता है,
क्या ऐसा आलिम इल्म कुरान और हदीस को फैलाने वाला हो सकता है? कुरान करीम फरमाता है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मुस्तफा आखिरी नबी हैं। अब कयामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा मगर एक मौलवी ही अपनी किताब में लिखता है कि अगर रसूल पाक के बाद कोई दूसरा नबी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए, इसलिए हर नबी जिंदा है। रसूल पाक तो ये फरमाए और एक मौलवी अपनी किताब में ये लिखे कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान खुद ऐलान फरमाता है, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जो दे उसे ले लो और रसूल जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। मगर एक मौलवी अपनी किताब में लिखता है कि नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है, वो कुछ नहीं दे सकते हैं। मुझे बताइए, क्या ऐसे उलमा सच्चे उलमा हो सकते हैं? क्या दरसगाहों में बैठने वाले ऐसे मौलवी बच्चों के अकीदे और ईमान की हिफाजत का सामान फराहम कर सकते हैं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। विल अप टू डेट किस्म का मुसलमान कहता है ये भी कुरान पढ़ते हैं वो भी कुरान पढ़ते हैं। हमको इस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना चाहिए मेरे भाइयों। ये भी फरेबे नफ्स है, ये भी नफ्स का धोखा है। नफ्स यहां भी गालिब आ गया, अक्ल मगलूब हो गई, अक्ल शिकस्त खा गई। मुझे आप बताइए कि अगर दीवार के पीछे से एक आवाज आए और आवाज कानों में आपसे टकराई, मैंने कहा जरा गौर से सुनिए क्या आवाज आ रही है। आवाज आई म्याऊं म्याऊं। मैंने पूछा किस चीज की आवाज है? तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए मैंने नहीं कुछ कहा है, आप खुद बोल रहे हैं। किस चीज की आवाज है? बिल्ली की आवाज है। और भों भों की आवाज आई। मैंने पूछा किस चीज की आवाज है? आपने कहा कुत्ता। आपने एक लम्हा भी इंतजार नहीं किया। आपने ये नहीं कहा कि हजरत हमने तो देखा नहीं है, जरा जा करके देख ले तब बताते हैं कि क्या जा है और वो कौन सा जानवर है जो बोल रहा है। आपको इस तहकीक की जरूरत नहीं पड़ी। आपको अल्लाह ने ये अक्ल दी कि आवाज को सुन करके आप उसकी हकीकत तक पहुंच गए और आपने ये जान लिया कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये सांप है, ये बिच्छू है। आपने आवाज को सुन करके जान लिया कि ये गधा है। तो मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूं, एक आवाज आती है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, और एक आवाज आती है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक आवाज आती है कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, और दूसरी आवाज आती है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक आवाज आती है तक़वीतुल ईमान के जरिया कौम के बच्चों के दिलो दिमाग में ये बिठाया जाता है, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचाई जाती है कि नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। और दूसरी आवाज आती है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। एक आवाज आती है कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह होता है, उनकी इतनी ही ताजीम करो जितनी की गांव के चौधरी की करते हो। और दूसरी आवाज आती है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा हमारा नबी। एक आवाज देने वाला आवाज देता है, नबी की हैसियत तो गांव के चौधरी की है, और एक आवाज आती है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक आवाज, आप जरा थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए, बहुत कीमती वक्त है और अभी इन बुजुर्गों की बरकतें हमें और आपको लेनी है। एक आवाज देने वाला आवाज देता है रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर। ये झंडी लगाना कहां से साबित है?
ये जुलूस निकालना कहां से साबित है? मिलाद मुस्तफा मनाना कहां लिखा है? और दूसरी तरफ से आवाज आती है मिसले फारस जलजले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। एक तरफ से आवाज आती है या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, और दूसरी तरफ से आवाज आती है गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आप मुझे बताइए, एक कहने वाला कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते, वो मजबूर महज है, और दूसरी आवाज आती है नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जबी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। आप मुझे बताइए इंसाफ के साथ, अब ठहर जाइए, मैं आपके इंसाफ से फैसला चाहता हूं। ए लखनऊ के इल्मो अदब की फजा में रहने वाले मुसलमानों, मैं आपके दिल से ये फैसला चाहता हूं कि अगर आपने बगैर देखे हुए एक आवाज को सुन करके आपने उसकी हकीकत को जान लिया कि ये बिल्ली है, आपको तहकीक करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप में से किसी ने ये नहीं कहा हमने तहकीक नहीं की है तो हम क्या जवाब दे, हमने जाके देखा नहीं है तो क्या जवाब दे। हर एक ने आवाज को सुन करके फौरन फैसला कर लिया कि ये बिल्ली की आवाज है, ये कुत्ते की आवाज है, ये गधे की आवाज है। तो मुझे कहने दिया जाए, क्या इन दोनों आवाजों को सुन करके आप ये नहीं समझ पाते हैं कि वफादार मुस्तफा की आवाज कौन है और गद्दार मुस्तफा की आवाज? हर इदारा रसूल पाक की सच्ची तालीमात का नाशिर नहीं होता है। हर आलिम कहलाने वाला मुस्तफा का नाइब नहीं होता है। सच्चे नियाबत की पहचान यह है कि असल ने जो तालीम दी है वो पहुंचाई जाए। सच्चे नाइब की अलामत यह है कि असल ने जो काम सुपुर्द किया है वो किया जाए। पूरी दुनिया के उलमाए तवाहुब को मेरा ये चैलेंज है, एक ज़ईफ से ज़ईफी हदीस वो पेश कर दे जिसमें रसूल पाक ने फरमाया हो कि हम सब मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे। एक ज़ईफ से ज़ईफ हदीस भी वो पेश कर दें जिसमें रसूल पाक ने फरमाया हो कि मेरी यौम विलादत पर तुम खुशी न मनाना। एक ज़ईफ से ज़ईफ हदीस वो साबित कर दें जिसमें रसूल पाक ने ये फरमाया हो कोई फर्क नहीं होता है ईमान और कुफ्र के दरमियान, सब मिलकर के एक रहो। कोई फर्क नहीं है मोमिन और काफिर के दरमियान, कुछ अकीदा और बद अकीदा के दरमियान कोई फर्क नहीं है। जिसके पीछे चाहो नमाज पढ़ लो, जिसके यहाँ चाहो शादी करो। ऐसी एक ज़ईफ से ज़ईफ लंगड़ी लूली भी अपने तौर पर अगर वो कोई बात पेश कर दें तो मैं समझता हूं कयामत आ जाएगी, मगर वो मैदान में आने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। आज एक आवाज तसव्वुफ के नाम पर लोगों तक पहुंचाई जा रही है, मोहब्बत सबसे है नफरत किसी से नहीं। वाह वाह, कैसी प्यारी आवाज है। लोगों ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐ इमाम अहमद रजा तेरी तुरबत पर करोड़ रहमतें नादिल हों, तेरी तुरबत पर हजारों सलाम की डालियां निछावर हो। तूने तकरीबन 125 साल पहले ऐसे बहरूपियों से बचने के लिए हमको ये पैगाम दे दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आखिर जामिया इमाम आजम अबू हनीफा की जरूरत क्यों पड़ी? इस इदारे को कायम क्यों किया गया? इसलिए कि हनफी बनकर जो लोग बदअकीदगी के जरासीम फैला रहे हैं, उनके चेहरे को बेनकाब करने के लिए, आपके ईमान की हिफाजत के लिए, अहले सुन्नत की इशाअत के लिए, दीन के मामले में जो लोग बेजा मुदाखलत करते हैं, जमीर फरोशी और ईमान फरोशी का काम करते हैं, आपको ऐसे बहरूपियों से बचाने के लिए, ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है। जब इंसान की अक्ल पर उसका नफ्स गालिब आए तो इंसान जानवर से भी बदतर हो जाता है। अब मैं वो जुमला नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो वेल अप टू डेट लड़के या लड़कियां ये मिजाज रखती हैं, मैं मुसलमानों को मुखातब होकर कह रहा हूं,
اس لیے کہ جس کے گھر میں آگ لگے گی وہ اپنے گھر کی آگ کو بجھانے کے لیے آواز دے گا، وہ چلائے گا۔ جس کے گھر میں ڈاکہ ڈالا جائے گا وہی چلائے گا کہ آؤ بچاؤ۔ اگر ہمارے گھر میں ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے تو ہم نہیں آواز لگائیں گے تو کون لگائے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء ایسا بولتے ویسا بولتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں بولتے۔ آپ نے سمجھا نہیں، ان کے نہ بولنے ہی میں تو بولنا ہے۔ ہم تو اس لیے بول دیتے ہیں تاکہ کم از کم آپ ایسے بہروپیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایک پرچہ آیا کہ فلاں ٹاپک پر تقریر کر دی جائے۔ تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے، ہمارے علماء نے ہر موضوع پر تقریر کر دی ہے۔ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا لوگوں نے ایسا کر دیا، علماء نے یہ کر دیا، علماء نے وہ کر دیا، ماحول انہوں نے خراب کر دیا، لڑکوں کو انہوں نے خراب کر دیا، نوجوانوں کو انہوں نے خراب کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو فطرت سلیمہ کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ تو کرامت و شرافت و بزرگی لے کر کے آئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وہاں سے آتا ہے تو اقرار توحید کے ساتھ آتا ہے، وہاں سے آتا ہے تو رسول پاک کی عظمت کا چراغ اپنے دل میں جلا کر کے آتا ہے، وہاں سے آتا ہے تو انبیاء کرام کی رسالت کا اقرار کر کے آتا ہے۔ آنے کے بعد دنیا کے اندر وہ بگڑا تو کس کی وجہ سے بگڑا؟ مولانا لوگوں کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے نہیں۔ رسول پاک نے آگے فرمایا فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او یونسرانہ او یمجسانہ، آیا تھا فطرت سلیمہ لے کر، آیا تھا وہاں سے عقل سلیم لے کر، آیا تھا وہاں سے پاکیزہ نیچر لے کر، آیا تھا وہاں سے شرافت لے کر، آیا تھا وہاں سے کرامت لے کر، آیا تھا وہاں سے بزرگی لے کر، آیا تھا وہاں سے سنجیدگی لے کر، آیا تھا وہاں سے عزت و وقار لے کر، آیا تھا وہاں سے اپنے نبی پر فدائی کا جذبہ لے کر، آیا تھا وہاں سے خدا کی توحید کا اقرار کر کے۔ دنیا میں آنے کے بعد بگڑا کیسے؟ مولانا لوگوں نے بگاڑا۔ میرے آقا فرماتے فَأَبْوَاهُ، اب اس کے والدین، اس کے ماں باپ، آیا تھا اسلام لے کر، اس کے ماں باپ نے اس کو یہودی بنا دیا، اس کے ماں باپ نے اس کو مجوسی بنا دیا، اس کے ماں باپ نے اس کو نصرانی بنا دیا۔ گویا بیٹا اور بیٹی اگر بگڑتے ہیں تو علماء کا قصور مت دیجیے، خود اپنے حرکتوں کا قصور دیجیے۔ بچے اگر بگڑتے ہیں، بیٹی اگر بگڑتی ہے، رسول پاک فرماتے ہیں وہ فطرت سلیمہ لے کر کے جو آیا بچہ یا بچی، اب اگر اس کے اندر بگاڑ آتا ہے تو سب سے پہلے بگاڑ کا کام اس کے والدین کی طرف سے آتا ہے۔ کیوں آپ نے غور نہیں کیا کہ بچی شیشے کے سامنے میک اپ میں آ کر کے ابھی 3 سال کی ناچ رہی ہے اور آپ خوش ہو کے پیسہ دے رہے ہیں، تو کیا ایسی بچی سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ کنیز فاطمہ بننے میں فخر محسوس کرے گی؟ کیا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ سیرت لے کر کے قوم کے اندر، معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو روکنے کا کام کرے گی؟ آپ نے پہلے بگاڑا۔ بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کے لیے یہی جملہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ ہمارے علماء نے آپ سے ہزاروں مرتبہ یہ کہا، آپ جو بھی چاہیے بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لائر بنائیے، جو چاہیے بنائیے، مگر سب سے پہلے مصطفیٰ کا وفادار بنائیے۔ آپ اس پر فخر مت کیجئے کہ ہم ڈاکٹر ہیں۔ دنیا کی کون سی قوم ہے جس میں اللہ نے ڈاکٹر نہیں پیدا کیا؟ کون سی ایسی قوم ہے جس میں ماسٹر اور انجینئر نہیں ہے؟ کون سی ایسی قوم ہے جس میں عالم اور حافظ نہیں ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے وہ کون سے مکاتب فکر ہیں جن کے ہاں عالم کہلانے والے لوگ نہیں پائے جاتے ہیں؟ کون سی وہ قوم ہے جن کے پاس لائر نہیں ہے، ایڈوکیٹ نہیں ہے، پروفیسر نہیں ہے؟ اور کون سی ایسی قوم ہے جس کے پاس ساہوکار اور سیٹ نہیں ہے؟ اللہ نے ہر قوم میں سیٹ بنایا، ساہوکار بنایا، انجینئر بنائے، ڈاکٹر دیے۔ اللہ نے ہر قوم کو ماسٹر اور انجینئر دیا، ہر قوم کو اللہ نے یہ عطا کیے۔ مگر یہ تو بتائیے کہ اللہ نے غوث اعظم کسے دیا ہے؟ دنیا کی کس قوم کے پاس خواجہ غریب نواز ہیں؟ دنیا کی کس قوم کے پاس مخدوم مینا ہیں؟
दुनिया की किस कौम के पास हाजी वारिस अली है, दुनिया की किस कौम के पास इमाम अहमद रजा है। पूरी दुनिया के अंदर हर कौम का तज्जिया कर दीजिए तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे उनके यहाँ डॉक्टर भी हैं, मास्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया मगर गौसे आजम हम सुन्नियों को दिया है। सुन्नी अगर अपनी किस्मत पर नाज करे तो बजा है, इसलिए कि डॉक्टर मास्टर हर कौम को अल्लाह ने अता किया मगर हम सुन्नियों को गौसे आजम दिया है। गौसे आजम किसी कौम के पास नहीं है, हम सुन्नियों के पास है। ख्वाजा गरीब नवाज किसी कौम के पास नहीं, हम सुन्नियों के पास। इमाम अहमद रजा किसी कौम के पास नहीं, हम सुन्नियों के पास है। और ताजुश शरिया भी किसी के पास। और इस दौर में मुहद्दिसे कबीर भी किसी के पास नहीं। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। हजारों मुखालिफिन सर पटक पटक करके खुद अपने सर को लहू लहान कर दे रहे हैं मगर इमाम अहमद रजा की ये समय कल जिस तरह से रोशन थी आज भी रोशन है। तभी तो कहने वाले ने कहा था सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोदा है आज। जामिया इमाम आजम अबू हनीफा ये मजहब हक अहले सुन्नत व जमात की सच्ची तर्जमानी करने के लिए कायम किया गया है। जो लोग हनफी बनकर गैर मुकल्लिद बनाने का काम करते हैं आपको उनसे दूर करके सच्चा हनफी बनाने के मिशन का नाम जामिया इमाम आजम अबू हनीफा है। आप इस इदारे के दस्तोबाजू बने, मुफ्ती फैजानुल मुस्तफा के शाना बशाना चलें, इसलिए कि आपने देख लिया कि आपके कायदीन उनकी हिमायत में। आपने देख लिया जमात अहले सुन्नत के वाजिब मुक्तदा और पेशवा कायदे अहले सुन्नत शहजादे ताजुश शरिया मेरे मुर्शिदे गिरामी के नूरे नजर लख्ते जिगर अहले सुन्नत की आंखों का तारा अल्लामा असजद रजा खां हमारा। उस जात की ताईद मुफ्ती फैजानुल मुस्तफा को हासिल है। उनका जलवा अभी आप देखेंगे और उस जलवे में जलवे ताजुश शरिया देखेंगे। अभी उनका जलवा अपनी तजल्लियात को बिखेरते हुए हमारे दरमियान तुलू होने वाला है। और ये जात जो बैठी हुई है आलम इस्लाम की उस नाबगए रोजगार शख्सियत की शक्ल में इसे देखिए कि शहर शहर डगर डगर ढूंढो जगह जाकर के दरसगाह दरसगाह मगर आपको इस जैसा न मिलेगा। ऐसी जात की ताईद मुफ्ती फैजानुल मुस्तफा साहब को हासिल है। आप अपने मसाइल शरइया में इनकी तरफ रुजू करें, जामिया इमाम आजम अबू हनीफा का ताउन करें, मसलके आला हजरत पर कायम रहें। मेरे मुर्शिद गिरामी आकाए नेमत हुजूर ताजुश शरिया ने पैगाम दिया है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।